السلام علیکم دوستو، آپ کا سواگت ہے میرے چینل پر، جہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں لیٹسٹ پاکستانی ڈراماز کے بارے میں۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ایک نئے ڈرامہ سیریل کا، جس کا نام ہے کبھی میں کبھی تم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ یہ ڈرامہ ایک ایموشنل رولر کوسٹر جو پیار، مس انڈرسٹینڈنگ کے احساس کے پاس گھومتا ہے۔ اسٹوری کے سینٹر میں ہیں دو کریکٹرز۔ یہ دیکھنے لائق ہے۔ اگر ایکٹنگ کی بات کریں تو علی کا رول پلے کر رہا ہے فہد مصطفیٰ۔ اس نے کمال ایکٹنگ کی ہے، دیکھنے لائق ہے، بہت اچھی ایکٹنگ ہے۔ ڈرامہ کے سینز بہت بیوٹیفل شوٹ کیے گئے ہیں اور آپ کو اسٹوری کے ساتھ انگیج رکھتے ہیں۔ پروڈکشن کوالٹی بھی بہت ٹاپ نوچ ہے، جو ڈرامہ کی ویژولیٹی اپیلنگ بناتی ہے۔ ڈرامہ کی بیک گراؤنڈ اسکور اور OST بھی کافی پاورفل ہے۔ میوزک سینز کے ایموشنز کو انہینس کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا سواگت ہے میرے چینل پر، جہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں لیٹسٹ پاکستانی ڈراماز کے بارے میں۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ایک نئے ڈرامہ سیریل کا، جس کا نام ہے کبھی میں کبھی تم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ یہ ڈرامہ ایک ایموشنل رولر کوسٹر جو پیار، مس انڈرسٹینڈنگ کے احساس کے پاس گھومتا ہے۔ اسٹوری کے سینٹر میں ہیں دو کریکٹرز۔ یہ دیکھنے لائق ہے۔ اگر ایکٹنگ کی بات کریں تو علی کا رول پلے کر رہا ہے فہد مصطفیٰ۔ اس نے کمال ایکٹنگ کی ہے، دیکھنے لائق ہے، بہت اچھی ایکٹنگ ہے۔ ڈرامہ کے سینز بہت بیوٹیفل شوٹ کیے گئے ہیں اور آپ کو اسٹوری کے ساتھ انگیج رکھتے ہیں۔ پروڈکشن کوالٹی بھی بہت ٹاپ نوچ ہے، جو ڈرامہ کی ویژولیٹی اپیلنگ بناتی ہے۔ ڈرامہ کی بیک گراؤنڈ اسکور اور OST بھی کافی پاورفل ہے۔ میوزک سینز کے ایموشنز کو انہینس کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا سواگت ہے میرے چینل پر، جہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں لیٹسٹ پاکستانی ڈراماز کے بارے میں۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ایک نئے ڈرامہ سیریل کا، جس کا نام ہے کبھی میں کبھی تم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ یہ ڈرامہ ایک ایموشنل رولر کوسٹر جو پیار، مس انڈرسٹینڈنگ کے احساس کے پاس گھومتا ہے۔ اسٹوری کے سینٹر میں ہیں دو کریکٹرز۔ یہ دیکھنے لائق ہے۔ اگر ایکٹنگ کی بات کریں تو علی کا رول پلے کر رہا ہے فہد مصطفیٰ۔ اس نے کمال ایکٹنگ کی ہے، دیکھنے لائق ہے، بہت اچھی ایکٹنگ ہے۔ ڈرامہ کے سینز بہت بیوٹیفل شوٹ کیے گئے ہیں اور آپ کو اسٹوری کے ساتھ انگیج رکھتے ہیں۔ پروڈکشن کوالٹی بھی بہت ٹاپ نوچ ہے، جو ڈرامہ کی ویژولیٹی اپیلنگ بناتی ہے۔ ڈرامہ کی بیک گراؤنڈ اسکور اور OST بھی کافی پاورفل ہے۔ میوزک سینز کے ایموشنز کو انہینس کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا سواگت ہے میرے چینل پر، جہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں لیٹسٹ پاکستانی ڈراماز کے بارے میں۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ایک نئے ڈرامہ سیریل کا، جس کا نام ہے کبھی میں کبھی تم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ یہ ڈرامہ ایک ایموشنل رولر کوسٹر جو پیار، مس انڈرسٹینڈنگ کے احساس کے پاس گھومتا ہے۔ اسٹوری کے سینٹر میں ہیں دو کریکٹرز۔ یہ دیکھنے لائق ہے۔ اگر ایکٹنگ کی بات کریں تو علی کا رول پلے کر رہا ہے فہد مصطفیٰ۔ اس نے کمال ایکٹنگ کی ہے، دیکھنے لائق ہے، بہت اچھی ایکٹنگ ہے۔ ڈرامہ کے سینز بہت بیوٹیفل شوٹ کیے گئے ہیں اور آپ کو اسٹوری کے ساتھ انگیج رکھتے ہیں۔ پروڈکشن کوالٹی بھی بہت ٹاپ نوچ ہے، جو ڈرامہ کی ویژولیٹی اپیلنگ بناتی ہے۔ ڈرامہ کی بیک گراؤنڈ اسکور اور OST بھی کافی پاورفل ہے۔ میوزک سینز کے ایموشنز کو انہینس کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا سواگت ہے میرے چینل پر، جہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں لیٹسٹ پاکستانی ڈراماز کے بارے میں۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ایک نئے ڈرامہ سیریل کا، جس کا نام ہے کبھی میں کبھی تم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ یہ ڈرامہ ایک ایموشنل رولر کوسٹر جو پیار، مس دوستو، انڈرسٹینڈنگ ڈرامہ سیریل کے سفر کا احساس نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے کے والا ہے، پاس جس میں آپ گھومتا ہے۔ دیکھیں گے کہ اسٹوری حسن کو زارا رہا کروا دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس سے کہتی ہے کہ حسن یہ کو کوئی دیکھنے لائق ہے۔ سائیکولوجیکل اگر مسائل ہیں، اس وجہ سے ایکٹنگ وہ کی اس طرح بات سے کریں کر تو رہا ہے۔ علی اگر میں اس کا کا رول ٹریٹمنٹ پلے نہیں کر رہا کرواؤں گی ہے تو وہ اور زیادہ فہد بیمار مصطفیٰ۔ ہو جائے گا۔ اسی اس نے وجہ سے کمال اس ایکٹنگ کے کی پیرنٹس ہے، کہتے ہیں دیکھنے کہ زارا لائق تم ہے، کیا بہت چاہتی اچھی ہو؟ تو زارا ایکٹنگ ہے۔ کہتی ہے کہ میں ڈرامہ یہی کے چاہتی ہوں سینز کہ بہت حسن بیوٹیفل کی شوٹ رہائی کیے ہو گئے ہیں جائے۔ اور آپ تو کو اگر اسٹوری ابھی کے تک آپ نے ساتھ ہمارا چینل انگیج رکھتے سبسکرائب ہیں۔ نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پروڈکشن ویڈیو کو بھی کوالٹی لائک بھی کریں۔
کریں۔ تو दोस्तों नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि इस तरह से जैसे कि ज़ारा ने हसन के साथ इतनी बड़ी नेकी की है तो वो उसका मान भी रखेगा। हसन ज़ारा को सब कुछ बता देगा कि उसके माइंड में आखिर क्या चल रहा है और वो किस वजह से बीमार है। ज़ारा भी आखिर एक डॉक्टर है और वो हसन की सारी सिचुएशन को समझती है, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं हसन की रिहाई चाहती हूँ क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ और मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं ही उसका साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा। इस तरह से हसन भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है क्योंकि उसने ज़ारा के साथ अच्छा नहीं किया होता, हमेशा उसे जख्मी कर देता है, लेकिन फिर भी ज़ारा ने उसका साथ दिया और मुश्किल वक्त में उसे नहीं छोड़ा। इस पर हसन बहुत ज्यादा खुश होता है। तो गाइस नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अभी अदलीब और नुमैर के दरमियान तो रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा है, वो दोनों आपस में खुश हैं, लेकिन अभी उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा होने वाले हैं क्योंकि अदलीब बार बार मुइज़ का नाम नुमैर के सामने लेती है और नुमैर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो मुइज़ का नाम उसके सामने ले। अदलीब नुमैर से कहती है कि मुइज़ के घर के सामने एक शॉप है, वहां से हम गुलाब जामुन लेंगे, बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो ये बात नुमैर को कुछ अच्छी नहीं लगती, इसी वजह से वो बना लेते हैं और कहते हैं कि नहीं आज नहीं लेते, फिर कभी ले लेंगे। सो गाइस नेक्स्ट वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि इसी तरह से नुमैर और अदलीब के दरमियान अब इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मुइज़ की वजह से। हालांकि अदलीब तो वैसे ही बातें निकाल लेती है, मुइज़ का नाम ले लेती है, लेकिन नुमैर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसी तरह आप देखेंगे कि हसन और ज़ारा भी एक दूसरे का साथ देंगे और ज़ारा हसन का ट्रीटमेंट करवाएगी। असल में तो हसन को जो प्रॉब्लम है वो उसके माजी की वजह से है, उसका माजी कुछ अच्छा नहीं था, शायद उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, तो ये सदमा अभी तक हसन को नहीं हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें क्योंकि इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और पाकिस्तानी ड्रामास के अपकमिंग एपिसोड्स के अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो दोस्तों नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि इस तरह से जैसे कि ज़ारा ने हसन के साथ इतनी बड़ी नेकी की है तो वो उसका मान भी रखेगा। हसन ज़ारा को सब कुछ बता देगा कि उसके माइंड में आखिर क्या चल रहा है और वो किस वजह से बीमार है। ज़ारा भी आखिर एक डॉक्टर है और वो हसन की सारी सिचुएशन को समझती है, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं हसन की रिहाई चाहती हूँ क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ और मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं ही उसका साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा। इस तरह से हसन भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है क्योंकि उसने ज़ारा के साथ अच्छा नहीं किया होता, हमेशा उसे जख्मी कर देता है, लेकिन फिर भी ज़ारा ने उसका साथ दिया और मुश्किल वक्त में उसे नहीं छोड़ा। इस पर हसन बहुत ज्यादा खुश होता है। तो गाइस नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अभी अदलीब और नुमैर के दरमियान तो रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा है, वो दोनों आपस में खुश हैं, लेकिन अभी उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा होने वाले हैं क्योंकि अदलीब बार बार मुइज़ का नाम नुमैर के सामने लेती है और नुमैर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो मुइज़ का नाम उसके सामने ले। अदलीब नुमैर से कहती है कि मुइज़ के घर के सामने एक शॉप है, वहां से हम गुलाब जामुन लेंगे, बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो ये बात नुमैर को कुछ अच्छी नहीं लगती, इसी वजह से वो बना लेता है और कहता है कि नहीं आज नहीं लेते, फिर कभी ले लेंगे। सो गाइस नेक्स्ट वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि इसी तरह से नुमैर और अदलीब के दरमियान अब इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मुइज़ की वजह से। हालांकि अदलीब तो वैसे ही बातें निकाल लेती है, मुइज़ का नाम ले लेती है, लेकिन नुमैर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसी तरह आप देखेंगे कि हसन और ज़ारा भी एक दूसरे का साथ देंगे और ज़ारा हसन का ट्रीटमेंट करवाएगी। असल में तो हसन को जो प्रॉब्लम है वो उसके माजी की वजह से है, उसका माजी कुछ अच्छा नहीं था, शायद उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, तो ये सदमा अभी तक हसन को नहीं भूला। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें क्योंकि इसकी नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और पाकिस्तानी ड्रामास के अपकमिंग एपिसोड्स के अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल सफा का नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि हसन को ज़ारा रिहा करवा देती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि हसन को कोई साइकोलॉजिकल मसाइल हैं, इसी वजह से वो इस तरह से कर रहा है, अगर मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी तो वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। इसी वजह से उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ज़ारा तुम क्या चाहती हो, तो ज़ारा कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि हसन की रिहाई हो जाए। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो ऐसे ही अपने लिमिट से बाहर चले जाते हैं। तुम बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसे लगा था मेहरुन्निसा कोई पैसे की डिमांड करेगी, लेकिन मेहरुन्निसा ने कहा मुझे ज़ैन शाह की फांसी चाहिए। मेहरुन्निसा सोचती है कि आखिर कब तक किसी गरीब को इसी तरह से ये लोग कुचल कर चले जाएंगे और अपने पैसे की ताकत पर ये अपने आप को भी कानून से छुड़वा लेंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये चीज मामूल
मामूल ही बन चुकी है। कोई भी अमीर किसी गरीब को कुचल कर चला जाता है और फिर बाद में पैसे देकर उनको खामोश करवा लिया जाता है। इस ड्रामे में बहुत ही अच्छा सबक दिया जा रहा है। हमें अपने हकूक के लिए लड़ना चाहिए और इस बात के अगेंस्ट जाना चाहिए कि कोई भी अमीर ज़्यादा किसी भी गरीब को पैसे के बलबूते पर अपने आप को सजा से ना छुड़वा सके। मेहरुनिसा यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर जैन ने किसी की जान ली है तो उसकी भी जान जानी चाहिए, उसे इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैन शाह की माँ मेहरू के घर पहुंच जाती है। वहाँ पर वो उसकी माँ से मिलती है। मेहरू की माँ से कहती है कि आप तो अपना बेटा खो चुकी हैं। आपको तो पता है कि इस बात का कितना दुख होता है। एक माँ के लिए ये किसी कयामत से बढ़ के नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि अब मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। मैं आप लोगों से माफी की दरख्वास्त करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहरुनिसा की माँ का दिल भी एक माँ का दिल होता है। वो माँ होती है तो माँ के जज्बात भी समझ सकती है। इसी वजह से वो इस बात का फैसला करती है कि वो ज़ैन शाह को माफ कर देगी। जितना दुख उसे मिला है वो किसी और माँ को ये दुख नहीं देगी। जैसे ही मेहरुनिसा घर आती है तो उसकी माँ इस बारे में बात करती है। मेहरुनिसा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और उन्हें कहती है कि मैं ज़ैन शाह को कभी भी माफ नहीं करूंगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम इस टॉपिक पे बात नहीं करोगी। लेकिन मेहरुनिसा किसी की भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ैन के पास पहुंच जाती है मेहरुनिसा। तब ज़ैन पूछता है कि लोगों को अगर उनकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो ऐसे ही अपने लिमिट से बाहर चले जाते हैं। तुम बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसे लगा था मेहरुनिसा कोई पैसे की डिमांड करेगी, लेकिन मेहरुनिसा ने कहा मुझे ज़ैन शाह की फांसी चाहिए। मेहरुनिसा सोचती है कि आखिर कब तक किसी गरीब को इसी तरह से ये लोग कुचल कर चले जाएंगे और अपने पैसे की ताकत पर ये अपने आप को भी कानून से छुड़वा लेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये चीज़ मामूल ही बन चुकी है। कोई भी अमीर किसी गरीब को कुचल कर चला जाता है और फिर बाद में पैसे देकर उनको खामोश करवा लिया जाता है। इस ड्रामे में बहुत ही अच्छा सबक दिया जा रहा है। हमें अपने हकूक के लिए लड़ना चाहिए और इस बात के अगेंस्ट जाना चाहिए कि कोई भी अमीर ज़्यादा किसी भी गरीब को पैसे के बलबूते पर अपने आप को सजा से ना छुड़वा सके। मेहरुनिसा यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर ज़ैन ने किसी की जान ली है तो उसकी भी जान जानी चाहिए, उसे इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैन शाह की माँ मेहरू के घर पहुंच जाती है। वहाँ पर वो उसकी माँ से मिलती है। मेहरू की माँ से कहती है कि आप तो अपना बेटा खो चुकी हैं। आपको तो पता है कि इस बात का कितना दुख होता है। एक माँ के लिए ये किसी कयामत से बढ़ के नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि अब मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। मैं आप लोगों से माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहरुनिसा की माँ का दिल भी एक माँ का दिल होता है। वो माँ होती है तो माँ के जज्बात भी समझ सकती है। इसी वजह से वो इस बात का फैसला करती है कि वो ज़ैन शाह को माफ़ कर देगी। जितना दुख उसे मिला है वो किसी और माँ को ये दुख नहीं देगी। जैसे ही मेहरुनिसा घर आती है तो उसकी माँ इस बारे में बात करती है। मेहरुनिसा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और उन्हें कहती है कि मैं ज़ैन शाह को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम इस टॉपिक पे बात नहीं करोगी। लेकिन मेहरुनिसा किसी की भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ैन के पास पहुंच जाती है मेहरुनिसा। तब ज़ैन पूछता है कि लोगों को अगर उनकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो ऐसे ही अपने लिमिट से बाहर चले जाते हैं। तुम बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसे लगा था मेहरुनिसा कोई पैसे की डिमांड करेगी, लेकिन मेहरुनिसा ने कहा मुझे ज़ैन शाह की फांसी चाहिए। मेहरुनिसा सोचती है कि आखिर कब तक किसी गरीब को इसी तरह से ये लोग कुचल कर चले जाएंगे और अपने पैसे की ताकत पर ये अपने आप को भी कानून से छुड़वा लेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये चीज़ मामूल ही बन चुकी है। कोई भी अमीर किसी गरीब को कुचल कर चला जाता है और फिर बाद में पैसे देकर उनको खामोश करवा लिया जाता है। इस ड्रामे में बहुत ही अच्छा सबक दिया जा रहा है। हमें अपने हकूक के लिए लड़ना चाहिए और इस बात के अगेंस्ट जाना चाहिए कि कोई भी अमीर ज़्यादा किसी भी गरीब को पैसे के बलबूते पर अपने आप को सजा से ना छुड़वा सके। मेहरुनिसा यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर ज़ैन ने किसी की जान ली है तो उसकी भी जान जानी चाहिए,
اسے اس چیز کی سزا ملنی چاہیے۔ ویورز، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ڈرامہ سیریل اقتدار کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زین شاہ کی ماں مہرو کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پر وہ اس کی ماں سے ملتی ہے۔ مہرو کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ تو اپنا بیٹا کھو چکی ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس بات کا کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ایک ماں کے لیے یہ کسی قیامت سے بڑھ کے نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتی کہ اب میرا بیٹا بھی اس دنیا سے چلا جائے۔ میں آپ لوگوں سے معافی کی درخواست کرتی ہوں۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ مہرالنساء کی ماں کا دل بھی ایک ماں کا دل ہوتا ہے۔ وہ ماں ہوتی ہے تو ماں کے جذبات بھی سمجھ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زین شاہ کو معاف کر دے گی۔ جتنا دکھ اسے ملا ہے وہ کسی اور ماں کو یہ دکھ نہیں دے گی۔ جیسے ہی مہرالنساء گھر آتی ہے تو اس کی ماں اس بارے میں بات کرتی ہے۔ مہرالنساء ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور انہیں کہتی ہے کہ میں زین شاہ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، آج کے بعد تم اس ٹاپک پہ بات نہیں کرو گی۔ لیکن مہرالنساء کسی کی بھی نہیں سنتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ زین کے پاس پہنچ جاتی ہے مہرالنساء۔ تب زین پوچھتا ہے کہ لوگوں کو اگر ان کی اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ ایسے ہی اپنے لمٹ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تم بتاؤ تمہیں اور کیا چاہیے؟ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ اسے لگا تھا مہرالنساء کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کرے گی، لیکن مہرالنساء نے کہا مجھے زین شاہ کی پھانسی چاہیے۔ مہرالنساء سوچتی ہے کہ آخر کب تک کسی غریب کو اسی طرح سے یہ لوگ کچل کر چلے جائیں گے اور اپنے پیسے کی طاقت پر یہ اپنے آپ کو بھی قانون سے چھڑوا لیں گے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ چیز معمول ہی بن چکی ہے۔ کوئی بھی امیر کسی غریب کو کچل کر چلا جاتا ہے اور پھر بعد میں پیسے دے کر ان کو خاموش کروا لیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں بہت ہی اچھا سبق دیا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے اور اس بات کے اگینسٹ جانا چاہیے کہ کوئی بھی امیر زیادہ کسی بھی غریب کو پیسے کے بل بوتے پر اپنے آپ کو سزا سے نہ چھڑوا سکے۔ مہرالنساء یہاں پر بہت ہی اچھا کر رہی ہے۔ اگر زین نے کسی کی جان لی ہے تو اس کی بھی جان جانی چاہیے، اسے اس چیز کی سزا ملنی چاہیے۔ ویورز، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ڈرامہ سیریل اقتدار کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زین شاہ کی ماں مہرو کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پر وہ اس کی ماں سے ملتی ہے۔ مہرو کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ تو اپنا بیٹا کھو چکی ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس بات کا کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ایک ماں کے لیے یہ کسی قیامت سے بڑھ کے نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتی کہ اب میرا بیٹا بھی اس دنیا سے چلا جائے۔ میں آپ لوگوں سے معافی کی درخواست کرتی ہوں۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ مہرالنساء کی ماں کا دل بھی ایک ماں کا دل ہوتا ہے۔ وہ ماں ہوتی ہے تو ماں کے جذبات بھی سمجھ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زین شاہ کو معاف کر دے گی۔ جتنا دکھ اسے ملا ہے وہ کسی اور ماں کو یہ دکھ نہیں دے گی۔ جیسے ہی مہرالنساء گھر آتی ہے تو اس کی ماں اس بارے میں بات کرتی ہے۔ مہرالنساء ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور انہیں کہتی ہے کہ میں زین شاہ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، آج کے بعد تم اس ٹاپک پہ بات نہیں کرو گی۔ لیکن مہرالنساء کسی کی بھی نہیں سنتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ زین کے پاس پہنچ جاتی ہے مہرالنساء۔ تب زین پوچھتا ہے کہ لوگوں کو اگر ان کی اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ ایسے ہی اپنے لمٹ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تم بتاؤ تمہیں اور کیا چاہیے؟ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ اسے لگا تھا مہرالنساء کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کرے گی، لیکن مہرالنساء نے کہا مجھے زین شاہ کی پھانسی چاہیے۔ مہرالنساء سوچتی ہے کہ آخر کب تک کسی غریب کو اسی طرح سے یہ لوگ کچل کر چلے جائیں گے اور اپنے پیسے کی طاقت پر یہ اپنے آپ کو بھی قانون سے چھڑوا لیں گے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ چیز معمول ہی بن چکی ہے۔ کوئی بھی امیر کسی غریب کو کچل کر چلا جاتا ہے اور پھر بعد میں پیسے دے کر ان کو خاموش کروا لیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں بہت ہی اچھا سبق دیا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے اور اس بات کے اگینسٹ جانا چاہیے کہ کوئی بھی امیر زیادہ کسی بھی غریب کو پیسے کے بل بوتے پر اپنے آپ کو سزا سے نہ چھڑوا سکے۔ مہرالنساء یہاں پر بہت ہی اچھا کر رہی ہے۔ اگر زین نے کسی کی جان لی ہے تو اس کی بھی جان جانی چاہیے، اسے اس چیز کی سزا ملنی چاہیے۔ ویورز، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ڈرامہ سیریل اقتدار کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زین شاہ کی ماں مہرو کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پر وہ اس کی ماں سے ملتی ہے۔
महरू की माँ से कहती है कि आप तो अपना बेटा खो चुकी हैं। आपको तो पता है कि इस बात का कितना दुख होता है। एक माँ के लिए ये किसी कयामत से बढ़ के नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि अब मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। मैं आप लोगों से माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहरुन्निसा की माँ का दिल भी एक माँ का दिल होता है। वो माँ होती है तो माँ के जज्बात भी समझ सकती है। इसी वजह से वो इस बात का फैसला करती है कि वो ज़ैन शाह को माफ़ कर देगी। जितना दुख उसे मिला है वो किसी और माँ को ये दुख नहीं देगी। जैसे ही मेहरुन्निसा घर आती है तो उसकी माँ इस बारे में बात करती है। मेहरुन्निसा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और उन्हें कहती है कि मैं ज़ैन शाह को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम इस टॉपिक पे बात नहीं करोगी। लेकिन मेहरुन्निसा किसी की भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ैन के पास पहुंच जाती है मेहरुन्निसा। तब ज़ैन पूछता है कि लोगों को अगर उनकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो ऐसे ही अपने लिमिट से बाहर चले जाते हैं। तुम बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसे लगा था मेहरुन्निसा कोई पैसे की डिमांड करेगी, लेकिन मेहरुन्निसा ने कहा मुझे ज़ैन शाह की फांसी चाहिए। मेहरुन्निसा सोचती है कि आखिर कब तक किसी गरीब को इसी तरह से ये लोग कुचल कर चले जाएंगे और अपने पैसे की ताकत पर ये अपने आप को भी कानून से छुड़वा लेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये चीज़ मामूल ही बन चुकी है। कोई भी अमीर किसी गरीब को कुचल कर चला जाता है और फिर बाद में पैसे देकर उनको खामोश करवा लिया जाता है। इस ड्रामे में बहुत ही अच्छा सबक दिया जा रहा है। हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए और इस बात के अगेंस्ट जाना चाहिए कि कोई भी अमीर ज़्यादा किसी भी गरीब को पैसे के बलबूते पर अपने आप को सज़ा से ना छुड़वा सके। मेहरुन्निसा यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर ज़ैन ने किसी की जान ली है तो उसकी भी जान जानी चाहिए, उसे इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैन शाह की माँ महरू के घर पहुंच जाती है। वहां पर वो उसकी माँ से मिलती है। महरू की माँ से कहती है कि आप तो अपना बेटा खो चुकी हैं। आपको तो पता है कि इस बात का कितना दुख होता है। एक माँ के लिए ये किसी कयामत से बढ़ के नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि अब मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। मैं आप लोगों से माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहरुन्निसा की माँ का दिल भी एक माँ का दिल होता है। वो माँ होती है तो माँ के जज्बात भी समझ सकती है। इसी वजह से वो इस बात का फैसला करती है कि वो ज़ैन शाह को माफ़ कर देगी। जितना दुख उसे मिला है वो किसी और माँ को ये दुख नहीं देगी। जैसे ही मेहरुन्निसा घर आती है तो उसकी माँ इस बारे में बात करती है। मेहरुन्निसा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और उन्हें कहती है कि मैं ज़ैन शाह को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम इस टॉपिक पे बात नहीं करोगी। लेकिन मेहरुन्निसा किसी की भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ैन के पास पहुंच जाती है मेहरुन्निसा। तब ज़ैन पूछता है कि लोगों को अगर उनकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो ऐसे ही अपने लिमिट से बाहर चले जाते हैं। तुम बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसे लगा था मेहरुन्निसा कोई पैसे की डिमांड करेगी, लेकिन मेहरुन्निसा ने कहा मुझे ज़ैन शाह की फांसी चाहिए। मेहरुन्निसा सोचती है कि आखिर कब तक किसी गरीब को इसी तरह से ये लोग कुचल कर चले जाएंगे और अपने पैसे की ताकत पर ये अपने आप को भी कानून से छुड़वा लेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये चीज़ मामूल ही बन चुकी है। कोई भी अमीर किसी गरीब को कुचल कर चला जाता है और फिर बाद में पैसे देकर उनको खामोश करवा लिया जाता है। इस ड्रामे में बहुत ही अच्छा सबक दिया जा रहा है। हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए और इस बात के अगेंस्ट जाना चाहिए कि कोई भी अमीर ज़्यादा किसी भी गरीब को पैसे के बलबूते पर अपने आप को सज़ा से ना छुड़वा सके। मेहरुन्निसा यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर ज़ैन ने किसी की जान ली है तो उसकी भी जान जानी चाहिए, उसे इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैन शाह की माँ महरू के घर पहुंच जाती है। वहां पर वो उसकी माँ से मिलती है। महरू की माँ से कहती है कि आप तो अपना बेटा खो चुकी हैं। आपको तो पता है कि इस बात का कितना दुख होता है। एक माँ के लिए ये किसी कयामत से बढ़ के नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि अब मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। मैं आप लोगों से माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहरुन्निसा की माँ का दिल भी एक माँ का दिल होता है।
वो माँ होती है तो माँ के जज्बात भी समझ सकती है। इसी वजह से वो इस बात का फैसला करती है कि वो ज़ैन शाह को माफ़ कर देगी। जितना दुख उसे मिला है वो किसी और माँ को ये दुख नहीं देगी। जैसे ही मेहरुनिसा घर आती है तो उसकी माँ इस बारे में बात करती है। मेहरुनिसा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और उन्हें कहती है कि मैं ज़ैन शाह को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम इस टॉपिक पे बात नहीं करोगी। लेकिन मेहरुनिसा किसी की भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ैन के पास पहुंच जाती है मेहरुनिसा। तब ज़ैन पूछता है कि लोगों को अगर उनकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो ऐसे ही अपने लिमिट से बाहर चले जाते हैं। तुम बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसे लगा था मेहरुनिसा कोई पैसे की डिमांड करेगी, लेकिन मेहरुनिसा ने कहा मुझे ज़ैन शाह की फांसी चाहिए। मेहरुनिसा सोचती है कि आखिर कब तक किसी गरीब को इसी तरह से ये लोग कुचल कर चले जाएंगे और अपने पैसे की ताकत पर ये अपने आप को भी कानून से छुड़वा लेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये चीज़ मामूल ही बन चुकी है। कोई भी अमीर किसी गरीब को कुचल कर चला जाता है और फिर बाद में पैसे देकर उनको खामोश करवा लिया जाता है। इस ड्रामे में बहुत ही अच्छा सबक दिया जा रहा है। हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए और इस बात के अगेंस्ट जाना चाहिए कि कोई भी अमीर ज़्यादा किसी भी गरीब को पैसे के बलबूते पर अपने आप को सज़ा से ना छुड़वा सके। मेहरुनिसा यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर ज़ैन ने किसी की जान ली है तो उसकी भी जान जानी चाहिए, उसे इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैन शाह की माँ मेहरू के घर पहुंच जाती है। वहां पर वो उसकी माँ से मिलती है। मेहरू की माँ से कहती है कि आप तो अपना बेटा खो चुकी हैं। आपको तो पता है कि इस बात का कितना दुख होता है। एक माँ के लिए ये किसी क़यामत से बढ़ के नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि अब मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। मैं आप लोगों से माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहरुनिसा की माँ का दिल भी एक माँ का दिल होता है। वो माँ होती है तो माँ के जज्बात भी समझ सकती है। इसी वजह से वो इस बात का फैसला करती है कि वो ज़ैन शाह को माफ़ कर देगी। जितना दुख उसे मिला है वो किसी और माँ को ये दुख नहीं देगी। जैसे ही मेहरुनिसा घर आती है तो उसकी माँ इस बारे में बात करती है। मेहरुनिसा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और उन्हें कहती है कि मैं ज़ैन शाह को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम इस टॉपिक पे बात नहीं करोगी। लेकिन मेहरुनिसा किसी की भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ैन के पास पहुंच जाती है मेहरुनिसा। तब ज़ैन पूछता है कि लोगों को अगर उनकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो ऐसे ही अपने लिमिट से बाहर चले जाते हैं। तुम बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसे लगा था मेहरुनिसा कोई पैसे की डिमांड करेगी, लेकिन मेहरुनिसा ने कहा मुझे ज़ैन शाह की फांसी चाहिए। मेहरुनिसा सोचती है कि आखिर कब तक किसी गरीब को इसी तरह से ये लोग कुचल कर चले जाएंगे और अपने पैसे की ताकत पर ये अपने आप को भी कानून से छुड़वा लेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये चीज़ मामूल ही बन चुकी है। कोई भी अमीर किसी गरीब को कुचल कर चला जाता है और फिर बाद में पैसे देकर उनको खामोश करवा लिया जाता है। इस ड्रामे में बहुत ही अच्छा सबक दिया जा रहा है। हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए और इस बात के अगेंस्ट जाना चाहिए कि कोई भी अमीर ज़्यादा किसी भी गरीब को पैसे के बलबूते पर अपने आप को सज़ा से ना छुड़वा सके। मेहरुनिसा यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर ज़ैन ने किसी की जान ली है तो उसकी भी जान जानी चाहिए, उसे इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैन शाह की माँ मेहरू के घर पहुंच जाती है। वहां पर वो उसकी माँ से मिलती है। मेहरू की माँ से कहती है कि आप तो अपना बेटा खो चुकी हैं। आपको तो पता है कि इस बात का कितना दुख होता है। एक माँ के लिए ये किसी क़यामत से बढ़ के नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि अब मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। मैं आप लोगों से माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहरुनिसा की माँ का दिल भी एक माँ का दिल होता है। वो माँ होती है तो माँ के जज्बात भी समझ सकती है। इसी वजह से वो इस बात का फैसला करती है कि वो ज़ैन शाह को माफ़ कर देगी। जितना दुख उसे मिला है वो किसी और माँ को ये दुख नहीं देगी। जैसे ही मेहरुनिसा घर आती है तो उसकी माँ इस बारे में बात करती है। मेहरुनिसा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और उन्हें कहती है कि मैं ज़ैन शाह को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम इस टॉपिक पे बात नहीं करोगी।
लेकिन मेहरुनिसा किसी की भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ैन के पास पहुंच जाती है मेहरुनिसा। तब ज़ैन पूछता है कि लोगों को अगर उनकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो ऐसे ही अपने लिमिट से बाहर चले जाते हैं। तुम बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसे लगा था मेहरुनिसा कोई पैसे की डिमांड करेगी, लेकिन मेहरुनिसा ने कहा मुझे ज़ैन शाह की फांसी चाहिए। मेहरुनिसा सोचती है कि आखिर कब तक किसी गरीब को इसी तरह से ये लोग कुचल कर चले जाएंगे और अपने पैसे की ताकत पर ये अपने आप को भी कानून से छुड़वा लेंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये चीज़ मामूल ही बन चुकी है। कोई भी अमीर किसी गरीब को कुचल कर चला जाता है और फिर बाद में पैसे देकर उनको खामोश करवा लिया जाता है। इस ड्रामे में बहुत ही अच्छा सबक दिया जा रहा है। हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए और इस बात के अगेंस्ट जाना चाहिए कि कोई भी अमीर ज़्यादा किसी भी गरीब को पैसे के बलबूते पर अपने आप को सज़ा से ना छुड़वा सके। मेहरुनिसा यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर ज़ैन ने किसी की जान ली है तो उसकी भी जान जानी चाहिए, उसे इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। व्यूअर्स आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैन शाह की माँ मेहरू के घर पहुंच जाती है। वहां पर वो उसकी माँ से मिलती है। मेहरू की माँ से कहती है कि आप तो अपना बेटा खो चुकी हैं। आपको तो पता है कि इस बात का कितना दुख होता है। एक माँ के लिए ये किसी क़यामत से बढ़ के नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि अब मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। मैं आप लोगों से माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहरुनिसा की माँ का दिल भी एक माँ का दिल होता है। वो माँ होती है तो माँ के जज्बात भी समझ सकती है। इसी वजह से वो इस बात का फैसला करती है कि वो ज़ैन शाह को माफ़ कर देगी। जितना दुख उसे मिला है वो किसी और माँ को ये दुख नहीं देगी। जैसे ही मेहरुनिसा घर आती है तो उसकी माँ इस बारे में बात करती है। मेहरुनिसा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और उन्हें कहती है कि मैं ज़ैन शाह को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम इस टॉपिक पे बात नहीं करोगी। लेकिन मेहरुनिसा किसी की भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ैन के पास पहुंच जाती है मेहरुनिसा। तब ज़ैन पूछता है कि लोगों को अगर उनकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो ऐसे ही अपने लिमिट से बाहर चले जाते हैं। तुम बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसे लगा था मेहरुनिसा कोई पैसे की डिमांड करेगी, लेकिन मेहरुनिसा ने कहा मुझे ज़ैन शाह की फांसी चाहिए। मेहरुनिसा सोचती है कि आखिर कब तक किसी गरीब को इसी तरह से ये लोग कुचल कर चले जाएंगे और अपने पैसे की ताकत पर ये अपने आप को भी कानून से छुड़वा लेंगे। घर आती है तो उसकी माँ इस बारे में बात करती है। मेहरुनिसा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और उन्हें कहती है कि मैं ज़ैन शाह को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम इस टॉपिक पे बात नहीं करोगी। लेकिन मेहरुनिसा किसी की भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ैन के पास पहुंच जाती है मेहरुनिसा। तब ज़ैन पूछता है कि लोगों को अगर उनकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो ऐसे ही अपने लिमिट से बाहर चले जाते हैं। तुम बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसे लगा था मेहरुनिसा कोई पैसे की डिमांड करेगी, लेकिन मेहरुनिसा ने कहा मुझे ज़ैन शाह की फांसी चाहिए। मेहरुनिसा सोचती है कि आखिर कब तक किसी गरीब को इसी तरह से ये लोग कुचल कर चले जाएंगे और अपने पैसे की ताकत पर ये अपने आप को भी कानून से छुड़वा लेंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये चीज़ मामूल ही बन चुकी है। कोई भी अमीर किसी गरीब को कुचल कर चला जाता है और फिर बाद में पैसे देकर उनको खामोश करवा लिया जाता है। इस ड्रामे में बहुत ही अच्छा सबक दिया जा रहा है। हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए और इस बात के अगेंस्ट जाना चाहिए कि कोई भी अमीर ज़्यादा किसी भी गरीब को पैसे के बलबूते पर अपने आप को सज़ा से ना छुड़वा सके। मेहरुनिसा यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर ज़ैन ने किसी की जान ली है तो उसकी भी जान जानी चाहिए, उसे इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। व्यूअर्स आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैन शाह की माँ मेहरू के घर पहुंच जाती है। वहां पर वो उसकी माँ से मिलती है। मेहरू की माँ से कहती है कि आप तो अपना बेटा खो चुकी हैं। आपको तो पता है कि इस बात का कितना दुख होता है। एक माँ के लिए ये किसी क़यामत से बढ़ के नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि अब मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। मैं आप लोगों से माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहरुनिसा की माँ का दिल भी एक माँ का दिल होता है।
वो माँ होती है तो माँ के जज्बात भी समझ सकती है। इसी वजह से वो इस बात का फैसला करती है कि वो ज़ैन शाह को माफ़ कर देगी। जितना दुख उसे मिला है वो किसी और माँ को ये दुख नहीं देगी। जैसे ही मेहरुनिसा घर आती है तो उसकी माँ इस बारे में बात करती है। मेहरुनिसा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और उन्हें कहती है कि मैं ज़ैन शाह को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम इस टॉपिक पे बात नहीं करोगी। लेकिन मेहरुनिसा किसी की भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ैन के पास पहुंच जाती है मेहरुनिसा। तब ज़ैन पूछता है कि लोगों को अगर उनकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो ऐसे ही अपने लिमिट से बाहर चले जाते हैं। तुम बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसे लगा था मेहरुनिसा कोई पैसे की डिमांड करेगी, लेकिन मेहरुनिसा ने कहा मुझे ज़ैन शाह की फांसी चाहिए। मेहरुनिसा सोचती है कि आखिर कब तक किसी गरीब को इसी तरह से ये लोग कुचल कर चले जाएंगे और अपने पैसे की ताकत पर ये अपने आप को भी कानून से छुड़वा लेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये चीज़ मामूल ही बन चुकी है। कोई भी अमीर किसी गरीब को कुचल कर चला जाता है और फिर बाद में पैसे देकर उनको खामोश करवा लिया जाता है। इस ड्रामे में बहुत ही अच्छा सबक दिया जा रहा है। हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए और इस बात के अगेंस्ट जाना चाहिए कि कोई भी अमीर ज़्यादा किसी भी गरीब को पैसे के बलबूते पर अपने आप को सज़ा से ना छुड़वा सके। मेहरुनिसा यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर ज़ैन ने किसी की जान ली है तो उसकी भी जान जानी चाहिए, उसे इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैन शाह की माँ मेहरू के घर पहुंच जाती है। वहां पर वो उसकी माँ से मिलती है। मेहरू की माँ से कहती है कि आप तो अपना बेटा खो चुकी हैं। आपको तो पता है कि इस बात का कितना दुख होता है। एक माँ के लिए ये किसी क़यामत से बढ़ के नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि अब मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। मैं आप लोगों से माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहरुनिसा की माँ का दिल भी एक माँ का दिल होता है। वो माँ होती है तो माँ के जज्बात भी समझ सकती है। इसी वजह से वो इस बात का फैसला करती है कि वो ज़ैन शाह को माफ़ कर देगी। जितना दुख उसे मिला है वो किसी और माँ को ये दुख नहीं देगी।